like leave this much page in your register on every page, so static book, or when you go through the newspaper, if you get anything extra, so that you can add on. Okay. यस, कहाँ थे सर? हम, मेरे को तो सब कुछ पता है, मेरे को कहाँ नहीं पता है, मेरे को तुम्हारी सब बातें पता है। अब लेकिन तुम समय जरा पंचुअल हो जाओ। कितने में छोड़ा था? बैठो 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 बैठो। हाँ हाँ हाँ, समझ गए, सब समझ गए हम, ठीक है। सो अभी एंड, ठीक है। अब सुनो, अब तो ये फ्रेश है, ठीक है तुम्हारा, दिस इज द न्यूएस्ट टॉपिक, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, नाउ लिसन। तो पहली बात तो तुम सभी ये कर लो, ठीक है। नाउ सी वन थिंग, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो, अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तुम बताओ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, it's the supreme law of the land, and the major purpose of the constitution is actually to put a restriction on the powers of the government, that you all agree with, right? ये अभी हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं to the concept of freedom. Ultimately, by discussing all of these things, we have to understand what freedom stands for, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो पहले तो एक आपको बात बताऊं, देयर आर टू थिंग्स, वन इज रूल एंड अनदर वन इज प्रिंसिपल्स। These two things will be used in our discussion, so let me bring a clarity on what's the difference between these two things, ठीक है। देखो, a law is basically based on, mostly based on rule, but the constitution is majorly based not on the basis of rules but on the basis of principles. What's the difference between this? Now let's say you are driving a car, okay, you are driving a car, and in Delhi the maximum speed limit for driving a car is 60 kilometer, okay, nakshatra idhar. Now driving a car, the maximum speed limit is, let's say, 60 kilometer per hour, right? Now, if you just cross 1 kilometer per hour speed, then that is आपने rule तोड़ दिया. If you just drive at 60 kilometer, तो आपने rule तोड़ दिया. It's hard and fast, ठीक है? It's very strict कि भाई 61 होते ही तुम्हारा rule टूट गया. Otherwise, if you are just below 60, तो आपका rule नहीं टूटा, है ना? This is the difference. अब principle क्या है? देखो, प्रिंसिपल कभी ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं होते. द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स में हमेशा बैलेंस किया जाता है. क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है. कैसे बैलेंस किया जाता है? बैलेंस ऐसे किया जाता है कि फॉर लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. ऑन वन हैंड the constitution grants you certain freedoms, ठीक है, it grants you certain freedoms, but on the other, अभी लिखो नहीं कुछ, अभी क्यों लिख रहे हो, इतना सब लिख दिया नहीं, अभी सुनो बस. On one hand the constitution grants you freedom, this is one principle on the basis of which the entire constitution is written, कि भाई the people must be, like there must be liberty to the people must be allowed to enjoy basic freedom, basic rights, but on the other hand this must not cross a limit, this must not cross a limit, there are reasonable restrictions on this. So this can never happen कि आपने you spoke one word that is inside freedom and you spoke another word that goes outside freedom, ऐसा नहीं होता. There is always a practice in Indian Constitution that दो चीजों को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश की जाती है. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं because our Constitution was enforced on 26th November 1949. You know this very well.
उसके जस्ट आपका 1-1.5 साल बाद ही अ केस केम अप टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, क्या केस आया? इट वाज AK गोपालन केस. AK गोपालन वाज एक्चुअली अ कम्युनिस्ट लीडर. ठीक है, ही वाज अ कम्युनिस्ट लीडर. और उन्होंने क्या किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्यूनिटिव डिटेंशन बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यू ऑल आर लॉयर्स, तो मैं कुछ चीजों को ये सोच लेता हूं कि आपको पता होंगी और इसमें कोई शेम नहीं है. तुम कोई 30 मार खान कोई नहीं हो. कोई चीज अगर ऐसी लगे कि भाई, मैंने बताया ना कि भाई शर्म कुछ नहीं है, ठीक है ना, शर्म कुछ नहीं है. अगर फिर भी जैसे अभी प्रिवेंटिव ही नहीं पता, सो जस्ट आस्क मी. ठीक है, कोई यहाँ कोई बाजीगर नहीं है, कोई कुछ नहीं है. ठीक है, सब बराबर है, सबको कुछ नहीं आता तभी पढ़ने आए हैं. सबको सब कुछ आ रहा होता तो घर पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं कि नहीं. ये बात अब सुनो मेरी बात. सो ही वाज एक्चुअली अरेस्टेड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन. ठीक है, तो क्या हुआ, दैट केस केम अप इन द सुप्रीम कोर्ट. वो केस को हम इलैबोरेटली पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल 21. बट अभी बस इतना समझो कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल अडॉप्ट किया कि हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ेंगे, हाउ वी विल रीड द कॉन्स्टिट्यूशन. उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वी विल बी रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ वेरी लिबरल सेंस, सॉरी, इन अ वेरी स्ट्रिक्टर सेंस. क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि हम बस ये देखेंगे कि लॉ क्या बोल रहा है. हम बस ये देखेंगे कि अगर एक चीज लॉ के अकॉर्डिंग सही है तो वो सही है, और अगर एक चीज लॉ के अकॉर्डिंग गलत है तो वो गलत है. बात आ रही है समझ में? दिस वॉज द स्टांस दैट वॉज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन AK गोपालन केस. कि भैया अगर लॉ ने ये बोल दिया कि जितने यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो, ठीक है, जिनका लॉ ऑप्शनल है, उनको जो है एक जगह बंद कर दिया जाए, एक रूम में जो है उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाए. अगर लॉ ये बात बोल रहा है तो वो सही है. अगर लॉ ने बोला और फिर डाल दो तो सही है. कोर्ट के हिसाब से वो ये नहीं देखेंगे कि भाई ये लॉ अच्छा है, राइट है, नहीं है, रीजनेबल है, आर्बिट्रेरी है, मालाफाइड है, बोनाफाइड है. वी विल नॉट टेक दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन. वी विल जस्ट टेक द थिंग इनटू कंसिडरेशन कि एक लॉ है, लॉ ये बोल रहा है, ओके, हम इस काम को करेंगे. बात आ गई समझ में? क्लियर है ये बात? आगे जाके देन हुआ एक सास बहू का डिस्प्यूट. ठीक है, कौन थी वो सास बहू? हाँ, पता होगा ना तुम्हें, बताओ. हाँ, इंदिरा गांधी. और उनकी बहू कौन थी? मेनका गांधी. अब आया मेनका गांधी केस. ठीक है, सो मेनका गांधी केस में पासपोर्ट्स एक्ट के अंडर मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था. ठीक है, अच्छा, क्या वो जब्त करना वॉज ऑथराइज्ड बाय द लॉ? यस, इट वॉज ऑथराइज्ड बाय द लॉ. क्या अब अथॉरिटीज ने अपना काम अकॉर्डिंग टू द लॉ किया था? जी हाँ, किया था. क्या वो काम जो कर रहे थे उसमें मेथड सही अपनाया था? जी हाँ, अपनाया था. बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट चेंज्ड इट्स स्टांस एंड स्टेटेड कि नहीं, अगर एक लॉ अपने आप में रीजनेबल नहीं है, बात आ रही है समझ में? अगर फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 है, ये मानो आर्बिट्रेरी है. आर्बिट्रेरी का मतलब क्या? आर्बिट्रेरी का मतलब कि अपने पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड है, किसी के पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड है. बेशक वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ठीक हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ठीक हो, लेकिन फिर भी कोर्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इसकी एक ट्रिनिटी दी गई. एंड बाय दिस ट्रिनिटी ये गोल्डन रूल को एस्टैब्लिश किया गया कि भाई द कोर्ट विल आल्सो लुक इनटू दिस मैटर कि भाई जो लॉ है वो अपने आप में रीजनेबल है या नहीं, वो अपने आप में कहीं आर्बिट्रेरी तो नहीं है, कहीं बोनाफाइड तो नहीं है. बात समझ रहे हो? गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, अभी ये वाला डिस्कशन अभी यहां तक का है. इतनी बात समझ गए कि अब क्या है, कोर्ट का स्टांस बदल गया. मैं आपका ये क्यों समझो, आपका भी जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड द बेस ऑफ इट. ठीक है, हम जो भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है,
अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी, आर्बिट्रेरी मतलब यूं समझो, फॉर एग्जाम्पल अ पुलिस इज डिप्लॉयड ऑन अ चेक पोस्ट, ठीक है, और पुलिस का काम है वहां पर कि जो भी व्हीकल गुजरेगी उसको चेक करना। दिस इज आप यूं समझ लो बाय अ नोटिफिकेशन, तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ है कि सबको चेक करना। अब तुम्हें वहां खड़ा कर दिया मान लो, ठीक है, यू आर द इंचार्ज ऑफ डूइंग दैट। तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हें लाल बत्ती की गाड़ियां दिख रही हैं तो उन्हें जाने दे रहे हो, और जो तुम्हें कोई नॉर्मल ऐसे ट्रांसपोर्टर टाइप लोग दिख रहे हैं तुम उसे रोक दे रही हो, ठीक है। यहां क्या कर रहे हो तुम, यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, यू आर एक्सरसाइजिंग योर पावर इन आर्बिट्रेरी सेंस। आप अपने खुद के विश पे, खुद के अपने जो है अपने खुद के कॉन्शियंस के डिसीजन पे ले रहे हो, आप रीजनेबल डिसीजन नहीं ले रहे हो, समझ रहे हो, दैट्स आर्बिट्रेरी, ठीक है, दोज डिसीजंस आर आर्बिट्रेरी, ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। तो अब यहां पर आता है कि हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम अपने एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है इस चीज में कि हाउ टू मेक एन इंडिविजुअल फ्री। और फ्री कैसे किया जाए किसी इंडिविजुअल को, हाउ टू मेक अ पर्सन फ्री, हाउ टू ग्रांट फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल, बाय रेस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ द स्टेट। बिकॉज आपको अल्टीमेटली खतरा किससे है, आपको खतरा किससे है, आपको स्टेट से खतरा है। स्टेट इज द एंटिटी दैट कैन रेस्ट्रिक्ट योर पावर्स। भैया स्टेट ही तो कर सकता है ना, कल को लॉ बना दे कि लोग सांस एक दिन में इतने से ज्यादा नहीं लेंगे। भाई स्टेट चाहे तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं, स्टेट कैन डू एनीथिंग। तो देखो ऐसे ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टार्ट ही हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन विद रेस्ट्रिक्टिंग द पावर, फंडामेंटल राइट्स, इजंट दिस ट्रू। भाई शुरुआत ही हो रही है रेस्ट्रिक्ट करने से पावर, है ना, पहले ये नहीं बताया पार्लियामेंट के पास में क्या क्या पावर्स होंगी ना, वो हम बाद में बताएंगे, पहले हम क्या बताएंगे, पहले हम ये बताएंगे कि पावर पर रेस्ट्रिक्शन क्या होंगी। अरे बात समझ में। सो हम वी इट इज नॉट एट ऑल रॉन्ग कि हम आर्टिकल 19 जो कि हमें फ्रीडम देता है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स अस फ्रीडम। नक्षत्र तुम क्या इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान थोड़ा कम है। नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं शायद कुछ माइक्रोफोन कुछ अब सही अब नहीं आ रही है कनेक्ट। सर। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। आप कैमरा नीचे, आप ऊपर वाले मॉनिटर पे। अच्छा ऐसा है क्या, अब यार ये नहीं पता मुझे मेरे को तुम बस सामने दिखाई दे रहे हो। आप अच्छा ऊपर ऐसा होता है, ओ आई थॉट वही यार ये देख कहाँ रहा है इधर उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया ठीक है। सो अब सुनो मेरी बात। सो इट इज नॉट एट ऑल रॉन्ग कि हम आर्टिकल 19 को बोले एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब थोड़ा सा ना एक जनरल डिस्कशन करते हैं, ठीक है, एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि व्हाई इज फ्रीडम रिक्वायर्ड, व्हाई इज फ्रीडम रिक्वायर्ड, ठीक है। या उससे पहले तुम कुछ इंट्रोडक्शन लिखो, राइट सम इंट्रोडक्शन, ठीक है। पुट द हेडिंग फ्रीडम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्रीडम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम को पढ़ेंगे। तुम्हारा क्या नाम है, आशीष। अरे यार तो फिर एक और स्टूडेंट है वो दीपांजल कहाँ है। तुम्हारा नाम वर्षा, नक्षत्र। हाँ लिखो फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम, ऐसे फर्स्ट लाइन लिखो राइट टू फ्रीडम is the cornerstone of Indian Constitution.
is the cornerstone of Indian Constitution, designed to promote fundamental rights, designed to promote fundamental rights, comma, democratic values, and national unity, ठीक है, ऐसे लिखो फुल स्टॉप. अब यहाँ वो बैलेंसिंग वाली जो मैंने आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट बैलेंसिंग ना. देखो, on one side we have to give freedom, we means constitution have to give freedom, but on the other side we also have to stop Achyut, कि Achyut don't say anything that might incite violence, and if violence will be there, then that will be a threat to the sovereignty, unity, national integrity of the country. So on one side have to give freedom, but on the other side have to balance it with Achyut. करेगा ऐसा? Will you do this? नहीं ना? हाँ नहीं है ना? So right, लिखो इस बात को. It guarantees specific freedoms. It guarantees specific freedoms to citizens. सुनो गौर से, मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूं, माइंड दीज वर्ड्स. इट इज लॉ, इट इज नॉट जनरल स्टडीज. Whatever single word you write has some sense. Here I did not made you write any person, I made you write citizen. This is also important. Why? Because explicitly the Constitution of India guarantees the right to freedom, not to anyone but to citizen. ठीक है? 15, 16, 19, 29, 30 are exclusively given to citizens. समझे? ठीक है. Every word has some sense, है ना? The word that don't have any sense, we will not be writing those words. ठीक है? So write citizen while balancing them against the needs of, a stable society. Against the needs of a stable society. अभी बताया ना, on one side we need a stable society, because when a stable society will be there, then only it will be possible for the people of that country to prosper, the country to grow, the state to enrich, the democracy to thrive. And for that stable society, what is required? Some restrictions are required. But if you will put excessive restrictions, arbitrary restriction, then also it will create problem. So that means कि उसके बदले आपको क्या है? You have to give freedom. अभी कौन ज्वाइन कर रहे हैं? Who is joining? अभी किसी ने क्या दोबारा ज्वाइन किया क्या? नहीं ना? हाँ. गेटिंग द पॉइंट ना? ठीक है. अभी एक और पॉइंट लिखो. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. दो, THOUGH, दो. हाँ, दीपांजल, एम आई ऑडिबल? हाँ. यस सर. कहाँ थे सर आप? सर एक सेकेंड. सर आई हैव ट्राइड टू जॉइन एट 5:20 बट. तो सर आपको तो कॉल करना चाहिए था ना फिर. यस सर, बट फिर सर मैंने अपने प्रोफाइल पे देखा तो उस पे लिखा था 13th डेट. नहीं उस नहीं लिंक का. सर मेरे पे नहीं. शो हो रहा है 13th. अच्छा, पता नहीं तो यार, फिर- सही करवा देंगे तुम्हारा. यस सर, फिर मैंने दोबारा, फिर उन्होंने कॉल किया तो मैंने लिंक अब मांगा तो जिन्होंने तुम्हें कॉल किया उनका नंबर सेव कर लो, और तुम्हें कोई दिक्कत हो तो उन्हीं को कॉल करना है. ठीक है? ओके. हाँ, चलो. अब सुनो, थोड़ा शुरू का, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग. अभी आगे सुनो मेरी बात. वी आर डिस्कसिंग फ्रीडम, एसेंस ऑफ फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके? सो यस सर. तुम यार ऐसे आ रहे हो. अच्छा, अब जैसे कंफर्टेबल हो,
जैसे तुम कंफर्टेबल हो तुम वैसे रखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो तो साक्षी हंस रही थी। I did not said anything. Sakshi was laughing on this. अब सुनो, लिखो इसमें next. So right, though these freedoms are so essential, comma, these are not absolute. These are not absolute. ठीक है भाई, बहुत एसेंशियल हैं, बट स्टिल दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, 100% नहीं है। ठीक है, फुल स्टॉप, राइट। दे रिप्रेजेंट अ बैलेंस बिटवीन, दे रिप्रेजेंट अ बैलेंस बिटवीन individual liberty and state control. Individual liberty and state control. On one side, it is with regards to giving the individual the liberty, okay, to do whatever they want, that will help them. And on the other side, Anji, हाँ, his question is, अगर ये फ्रीडम इतने ही एसेंशियल हैं तो फिर ये एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? ठीक है, तुम बड़े गुस्सा होके बोल रहे हो। एब्सोल्यूट अगर कर दिया जाए, अभी तुमको अगर खुला छोड़ दिया जाए कि तुमको जो करना है करो, तो तुम क्या करोगे? तुम क्लास से पहले अगर मैं तुम्हें डांटू ना कि तुम क्लास में टाइम पे आओ, तो तुम और 20 मिनट लेट आओगे। हाँ, अब यहां रेस्ट्रिक्शन भी जरूरी है, restriction is also required, but then giving you some freedom, not some, but giving you freedom is also required. भाई तुम्हें फ्रीडम नहीं देंगे, so how you will be able to develop your personality, how you will be able to thrive, enrich, कैसे करोगे फिर, है ना? So दोनों चीजें जरूरी होती हैं, है ना? So both things are required. धीरे धीरे हम केसेस पढ़ेंगे ना, we will see case law, सकल न्यूज़पेपर लॉ, इंडियन एक्सप्रेस के सकल न्यूज़पेपर केस, इंडियन एक्सप्रेस केस, बहुत सारे ऐसे केसेस। हाँ, he is saying कि every individual has the right to practice any profession, but you don't have any आपका medical degree, but you will say I want to practice। वो है ना, एक मीम आता नहीं है, वो एक मीम आता है, तुमने देखा हो, पर तुम बहुत पढ़ते हो तो इसलिए तुम नहीं चलाते हो शायद इंस्टाग्राम फेसबुक, बट वो एक मीम आता है, तो वो एक इंसान है, झोला छाप डॉक्टर है, वो बोलता है मैं प्रैक्टिशनर हूं। तो लीगल वे में तो रेस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेगी ना। बेयर एक्ट की बात कर रहे हो या बेयर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो? बेयर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, अभी तुमको सब दिखाएंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? Bare constitution is full of restrictions. The freedom is just given in 6 lines, and rest every like entire constitution is just full with restrictions. How to limit that freedom? This is the beauty of the constitution. And on one side it gives you freedom, on the other side it takes away the freedom. There is no, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। She is saying there is no liberty without law. That is definitely. See, there are restrictions, but restrictions are also of two types: positive restriction and negative restriction. Now you are sitting here, you are here for the entire 2 hour, है ना, for a period of 6 months, 6.5 months, right? Now this particular slot from your life for more than 6 months is restricted to just being in this class. Isn't this is a restriction on your liberty. Otherwise, if this restriction was not have been there, then you could have done anything, whatever you like. Here, coming on again here, but this is what kind of restriction? This is a positive restriction. So what restrictions are mentioned in fundamental right? These are not negative restrictions. These are positive in the sense that it allows the state to thrive. It allows the state to prosper, right? Samjhe balak? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी मिश्रा जी। तो अभी आपने जो एग्जांपल दिया कि ये 2 घंटे भी, दिस इज अ पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शन, बट
We are not allowed to do anything else. कोई negative restriction नहीं है. We are not allowed to do anything else. Except this, like study अभी 2 घंटे. हाँ. तो ये negative restriction नहीं है. नहीं, मतलब अगर तुम देखो इसका भी सेंस देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल फ्रीडम तब तो ये नेगेटिव हुआ, बट इफ इट इज कंसर्न विद रिगार्ड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, then it's a positive type of restriction that allows you to thrive. If it, yes, in the sense if you are saying that it's stopping you from doing something else, in that sense negative मतलब यही होता है कि it stops you. ठीक है, बात तुम्हारी हम समझ रहे हैं, but why I am calling this as more positive कि भाई this allows you to even तुम फिर when you will enter to the exam hall then it will help you, it's building content in your mind. तो इस sense में ये positive है, समझ लो इसको. हाँ, नहीं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अभी if we will just put freedom of religion like in the absolute category, in that case what will happen is you will say that you are having the freedom of religion, even you will misuse it, you will ask him to convert to your religion. रिलीजन पर भी तो फिर मतलब बहुत वो है ना, अब तुम 10 लोग मिल जाओगे एक साथ मिलके बोलोगे हमारा रिलीजन अपना अलग है, भैया नहीं हो सकता ऐसा दिस इज नॉट. लिंगायत बोलते हैं हम हमारा रिलीजन अलग है, लिंगायत केस पढ़ो, दे आर सेइंग वी आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन. अरे यू आर नॉट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, यू आर अ पार्ट सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म. बहुत दिक्कत हो जाएगी रिलीजन को भी अगर एब्सोल्यूट कर दिया तो. हाँ, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी. अब यू डोंट वरी, तुम ये मत सोचो कि रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो मतलब वो रेस्ट्रिक्शन जो है कुछ भी लगा देंगे फिर तुम्हारे ऊपर. नहीं, कुछ भी नहीं लगा सकते. कोर्ट बैठा तो है, कोर्ट तो है ना, कोर्ट देखेगा ना, वहां बहुत ब्रिलियंट माइंड्स आर सिटिंग देयर. हाँ, अपने ही फादर के जजमेंट को ओवररूल कर दिया था चंद्रचूड़ जी ने. अब सोचो खुद. हाँ, एडीएम जबलपुर में उनके फादर थे, और फिर तुम्हारा पुट्टस्वामी में तुम्हारा जो है नहीं लगा तो है ना ब्रिलियंट माइंड. दोनों में पढ़ते हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़. ठीक है, तो समझ रहे हो. बालक बोलो. हाँ भी तो बोलो. हाँ, ये भी तो बात है. हाँ, तो बहुत दिक्कतें हैं यार, बहुत समस्याएं हैं. तुमको क्या एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए? दे तुमको एब्सोल्यूट फ्रीडम. तुम्हारे घर पे कॉल करके बोलते हैं, लेट आता है डेली, बताए अभी बताते हैं. हाँ भी रुको, ठीक है, तुम बताते हैं. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. सो तुमने सभी ने एडमिशन के टाइम पे पेरेंट्स का नंबर दिया है ना? हाँ, दिया है ना. बस अब देखो तुम, श्वेता ने लगता है नहीं दिया. नहीं दिया ना. दीपांजल, तुम तो बड़े छोटे हो, तुम तो सेकंड ईयर में हो, तुमने तो दिया होगा ना. हाँ, देखो अब तुम्हारे घर पे कॉल करेंगे तो तुम खुद को क्या बहुत बड़ा मान रहे हो? लिखो नेक्स्ट पॉइंट. These rights under Article 19 are available only to citizens of India. Are available only to citizens of India. ठीक है. And entities such as foreign nationals and entities such as foreign nationals, comma, municipal committees and DTs. DEITIES. भगवान जी,
DTs. राम जन्मभूमि केस में क्या हुआ था? Who was fighting the case? रामलला. अरे उन्हीं के तो राइट को प्रोटेक्ट किया गया है, समझे कि नहीं? तो DTs कैन नॉट टेक हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल. देखो यार, हाँ, तो क्रिएटर को हम बोल रहे हैं कि यू कैन नॉट यूज अ राइट दैट इज गिवन बाय इंडिविजुअल्स. क्रिएटर को हम बोल रहे हैं, है ना? सो यस. अच्छा, अब डोंट थिंक कि भाई if DTs foreign nationals are not able to recourse to this right, but there are other ways, है ना? There are other methods to go for that. ठीक है, पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, है ना? Yes. लीगल कॉर्पोरेशंस तो हाँ नेशनल है ना, तो तब ठीक है. इफ दे आर नेशनल, nationals can take help of that. म्युनिसिपल कमिटीज एक्चुअली जो लोकल लेवल की जो म्युनिसिपल कमिटीज होती है ना, उनको कुछ केसेस रहे हैं वेयर दे वर बैड फ्रॉम यूजिंग दिस. ठीक है, तो इसीलिए हमने ऐड कर दिया इसको. ठीक है, सो देयर आर सब्सिक्वेंट जजमेंट्स. ठीक है, तो जिसमें म्युनिसिपल कमिटीज को अलाउ नहीं किया गया था टू रिकोर्स टू दिस. ठीक है, बिकॉज एक्चुअली द थिंग इज कि यू आर फॉर्म्ड टू अलाउ अदर्स टू एंजॉय फ्रीडम. समझ रहे हो बात? मतलब लोकल गवर्नमेंट को क्यों बनाया है? सो दैट यू कैन बी हैविंग द फैसिलिटीज टू एंजॉय योर फ्रीडम. अब वही तुम ही बोलने लग जाओ हमको फ्रीडम दो. अरे तुम्हारी म्युनिसिपल का कोई इंडिविजुअल अगर लेना चाहेगा then he is allowed, but corporation as a whole not allowed. ट्रेड यूनियंस में हाँ, उनके लिए तो अलग से ही है ना, उनके लिए तो इसी में क्लॉजेस है ना, ट्रेड यूनियंस एसोसिएशंस, तो वो एसोसिएशन में ही आ गया वो तो ना, तो दे तो हैव राइट है ना उसको, उनके पास तो. सी देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. एक तो एसोसिएशन फॉर्म करने का राइट, और एक उस एसोसिएशन की फ्रीडम. दोनों डिफरेंट है, समझो. मतलब थिंक लाइक दिस. एक तो राइट टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड अब वो ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ करने की फ्रीडम. दोनों अलग है. ठीक है, यहां वो ऑर्गेनाइजेशन अगर जाती है कुछ करने के लिए, उसमें दे क्लेम आर्टिकल 19, तब रेस्ट्रिक्शन हो सकती है. बट उस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाने की फ्रीडम इज कवर्ड. अब वो फिर बाद में और आर्टिकल तुम देखो, 300A में चले जाओ, प्रॉपर्टी के, भैया हमको प्रॉपर्टी खरीदनी है. ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, तुम 300A में चले जाओ. तुम वो कौन सा तो एक आर्टिकल, वो कौन सा है यार, वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड नेविगेशन वाला, नहीं, इंटरकोर्स नेविगेशन वाला एक आर्टिकल है ना? हाँ, तो तुम वहां चले जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं, तुम फिर वहां जाओ, है ना? बट इसकी एक्सप्लिसिटली 19 की अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. ठीक है, हाँ. अच्छा, तो अब नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लो इसमें, और ये खाली दिस लाइन इज नॉट फॉर ओनली फ्रीडम बट फॉर एवरी आर्टिकल. ठीक है, ऐसे लिखो. while the article lists specific freedoms, the Supreme Court has interpreted ये फेंक के. अच्छा, दोस्ती हो गई क्या? नहीं, अच्छा नहीं, मेरे को लगा पता है दोस्ती हम देखते हैं कि पहली बार क्लास हुई. अरे ऐसा नहीं करो यार, फ्रेंड तो बहुत जरूरी होते हैं. अरे नहीं नहीं, सोशल लाइफ से तुम अलग होके तैयारी नहीं कर सकते. अरे तुम तो रह नहीं दो यार. ठीक है, हम जानते हैं तुम्हारी उस दोस्त को. बोल रहा है मैं तो कोई दोस्ती नहीं करता है, हम सब जानते हैं, तुम रहने दो. उसका भी लॉ ऑप्शनल ही है. हमको सब पता है. चलो, so लिखो. So right, while the articles
या आर्टिकल लिस्ट स्पेसिफिक फ्रीडम्स द सुप्रीम कोर्ट हैज, ठीक है यार एक ही बात है, स्पेसिफिक लिस्ट स्पेसिफिक फ्रीडम्स, ठीक है, कॉमा, द सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड इट टू इंक्लूड, Supreme Court has interpreted it to include rights that are implicit, even if not explicitly stated, even if not explicitly stated. ठीक है, समझ गए? तो कई ऐसे राइट्स हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, अब सुनो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो तुम अब मतलब करते करते तुमको समझाते हैं, मतलब देखो ऐसा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास राइट टू लाइफ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तुम्हारे पास राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ मतलब क्या? तो खाली ये लिखा हुआ है ना कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनीवन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यही है ना। अब तुम्हारे पास राइट टू लाइफ का मतलब क्या? कि मतलब बस तुमको छोड़ दिया जाए, तुमको कोई मारे ना, तुम्हारे पास बस जीना है तुमको, तो तुम में और जानवर में क्या फर्क रह गया? This is not what I am saying. This is even UPSC has directly asked this question. I think 19 में, ठीक है, मेरे ही सामने आया था ये पेपर, I wrote this, है ना, उसी टाइम पे, तो वही उसी समय का ये पेपर है, तो इसलिए बहुत अच्छे से याद है ये, ठीक है। तो this court was explicitly asked, ठीक है, कि भाई तो क्या एनिमल राइट टू लाइफ डज नॉट जस्ट मीन्स मियर एनिमल एग्जिस्टेंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं कहा हुआ है कि तुम्हें और क्या क्या चाहिए राइट टू लाइफ में, बट सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन, बट उसका मतलब है कि तुम्हें साफ पानी, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, वाटर, सैनिटेशन, इवन राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू इंटरनेट, राइट टू प्राइवेसी, ये सब चाहिए तुम्हें सब। क्या बात यार, अनुराधा बसिन केस नहीं है क्या? हाँ, अनुराधा बसिन केस है तो सही, बहुत, तो क्या कर रहे थे, भुलवा दिए। हाँ, तो अभी सुनो मेरी बात, कि दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं नहीं, तुमको बस उस स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, रुको अभी तुम्हें सब दिखेगा, ये देखो, जादू, ठीक है, मैजिक। अब सुनो मेरी बात, तुमको पता है जो मैंने अभी ये किया, मुझे ये सीखने में कितना टाइम लगा, और ये जेनजी हो तुम लोग, तुम एक सेकंड में सीख जाते हो, ये करने में मुझे जो है कई दिन लगे हैं यहाँ, ये प्रैक्टिस करने में कि कैसे होगा ये। तो देखो, दिस इज आपका आर्टिकल 19, ठीक है, व्हाट्स द हेडिंग? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, ठीक है। अब व्हाई आई एम शोइंग यू दिस बेयर, द रीजन बीइंग कि आई वांट टू मेक यू क्लियर, जब भी मैं आपको कभी सेक्शन लिखवाऊंगा, सब सेक्शंस लिखवाऊंगा, थिंग्स विल बी क्लियर इन योर माइंड कि हाँ मैं किन चीजों की बात कर रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं। देखो, देयर इज ओनली वन फर्स्ट सेक्शन, जितने भी राइट्स हैं, अब तो नॉट 7 बट 6, जो भी राइट्स हैं, these rights are mentioned, rights are exclusively mentioned only in section 1. कहां पर मेंशन है? सेक्शन 1, समझ रहे हो? अब सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि मैं अगर आपको बोलूं कि सेक्शन 1, आर्टिकल 19 सेक्शन 1, आप सॉरी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए has to be read with article 19 clause 2, समझ जाना इसका मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज, ये क्या बोल रहा है?
राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसी के ऊपर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 1 में नहीं लिखी हुई है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में लिखी हुई है। समझ रहे हो? गेटिंग द पॉइंट? तो इसका मतलब ये है कि क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हैज टू बी रेड विथ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19। समझ गए ये बात? इज दिस क्लियर? तुम भी यही कर दिया करो, दिस अंगूठा, है ना? हाँ यार सीखो यार, एक आध दो और इमोजीज। अनुष्का बताओ इनको जरा, और क्या क्या दूसरी इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या इमोजीज आते हैं? तुमने देखे हैं वो सारे इमोजीज? अब तो बहुत कम हो गए हैं, तो बच्चे जो है। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ 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 हाँ, ये अभी वो मेरे मुंह से भी सेक्शन निकल रहा था उससे क्वेश्चन। हाँ सही बात। एक्चुअली आई वाज रेफरिंग टू एक वो केस पढ़ रहा था मैं भी, इसलिए मुंह में सेक्शन आ गया। तो सेक्शंस देखो, सेक्शन जो है ना, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है। सेक्शंस जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यूज होना, वो एक्चुअली बेयर स्टैट्यूट्स के लिए हुआ था। द स्टैट्यूट्स जो इनके बिहाफ पे जो है, मतलब देखो, अच्छा या ऐसे एक ग्रैंड नॉर्म कॉन्सेप्ट पढ़ा है? ग्रैंड नॉर्म, ग्रैंड नॉर्म सुना होगा, केल्सन का कॉन्सेप्ट। दैट मींस कि एक लॉ कोई भी है, फॉर एग्जांपल आपका बीएनएस, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम सम हायर लॉ। तो इंडिया में बीएनएस है, बीएनएस इज, यू कैन से कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आईपीसी जो पहले था, भारतीय न्याय संहिता इज डिराइव्ड फ्रॉम अर्लियर आईपीसी 1860, एंड आईपीसी या फिर आईपीसी उस समय कहां से डिराइव था? फ्रॉम द पीनल प्रोविजन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अभी जो बीएनएस है, वी कैन से दैट बीएनएस को अथॉरिटी कहां से मिलती है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। यूजुअली क्या होता है कि जो हायर लॉज होते हैं ना, जहां से बाकी लॉज बनते हैं, उन हायर लॉज में आर्टिकल को यूज किया जाता है। कहीं कोई क्लियर कट रिटर्न नहीं है। बट तुमने एक और बात देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर है, यूएन चार्टर में सेक्शंस नहीं यूज्ड है, यूएन चार्टर में आर्टिकल्स यूज्ड है। वाई? बिकॉज अब वो एक यूएन चार्टर है, उसके बेसिस पे आप म्युनिसिपल लॉज को बनाएंगे। ठीक है, और फिर उन म्युनिसिपल लॉज में आप सेक्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, अब उसके बेसिस पे जो स्टैट्यूट्स बनाएंगे लेजिस्लेचर, वो यूज करेंगे सेक्शंस। क्लियर है ये बात? ठीक है, नाइस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बढ़िया। चलो अब सुनो मेरी बात। कहा था मैं? अच्छा, बस ये बताया था, बेयर दिखाया था ना तुम्हें। ओके, ऑलराइट। तुम्हारे पास बेयर में क्या है? बेयर में व्हाट यू हैव? वो येलो वाली, यूनिवर्सल वाली, वही है। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। तुम बेशक जो है तुम्हारे पॉलिटी में भी काम आएगी, यहाँ भी पीएम बख्शी भी होती है, कोई रख लो, चल चलेगा। एवरी, बस थोड़ा एंजॉय करना, अपडेटेड ही हो, यूज अपडेटेड वन ओनली, है ना? हाँ वही है ना। अच्छा, जो बाहर काउंसिल में यूज होती है, कौन कौन दे क्या है पेपर? पिछली बार का दिया था, क्लियर? और किसी का नहीं दिया? टफेस्ट था इस बार का। साक्षी ने तो पिछली बार ही दे रखा है, और मैंने ऑफिशियली इस बार दिया था। कैसा हाँ। लगा जादू? हो गया। इस बार, अरे यार एक बार को तो ना आई गॉट कंफ्यूज्ड इस बात को लेके कि मतलब सही में ये बार काउंसिल का ही पेपर है क्या? मतलब भाई क्या कर रहे हो भाई, मतलब कुछ नहीं कह सकते। लखनऊ वालों के लिए अच्छा था, ये दे के आया था, चीटिंग हुई है। और जहां नहीं चीटिंग हुई वहां, और चीटिंग करना अच्छी बात है, फिर बोलते हो कि रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं हमारे ऊपर? नहीं, तुम ही अभी बोल रहे थे ना। अरे ओपन बुक, नहीं नहीं, तुम्हारे लिए वो इजी क्योंकि तुमने पिछले साल दिया था। इस बार ओपन बुक वाज जस्ट फॉर नेम। ठीक है, क्योंकि इस बार इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब मुझे तो खैर पेपर हॉल में नहीं बैठा, तो इसलिए हॉल का एक्सपीरियंस नहीं, बट बेयर से खाली नहीं हो सकता था इस बार।
इस बार खाली बेयर से नहीं हो सकता था। चलो, कहाँ कराया है तुमने रजिस्ट्रेशन? एमपी में है। और तुम्हारा साक्षी? सर चंडीगढ़ ओनली। चंडीगढ़। हाँ, तो कोई नहीं, दे लेना। नहीं नहीं, वो फिर यार, अरे ठीक है, एक बार देना है जिंदगी में। नहीं, फिर तुम्हें वो सर्टिफिकेट भी लगाना होगा बेवजह, 2 साल बाद दोगे तो, कि स्टेटिंग कि तुम क्यों नहीं दिया, तुमने 2 साल क्या किया। हाँ, कहीं करना हो, अब एक आध कोई केस वेस आ जाए कहीं में जाके लड़ना हो। ठीक है, चलो अब देखो आगे। अब राइट, एक हेडिंग डालो, द 6 फ्रीडम्स। 6 फ्रीडम, SIX, 6 फ्रीडम्स। देखो, ऐसे लिखो, चलो लिखो, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1, comma, citizens are guaranteed the following freedoms. Citizens are guaranteed the following freedoms. ठीक है, are guaranteed the following freedoms. 1, clause 1, right? Speech and expression, speech and expression. अभी थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, धीरे धीरे देखेंगे फिर अच्छे से, है ना। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 2 पीसफुल असेंबली, 2 पीसफुल असेंबली, 3 एसोसिएशन, 4 फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट, 5 रेजिडेंस, residence, 6 practicing any profession or carrying out any business. ठीक है, और ये तो हैं तुम्हारे फ्रीडम्स। ठीक है, अभी फ्रीडम से ज्यादा, फर्स्ट वी विल हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एवरी क्लॉज, and with respective clause reasonable restriction, then we will discuss every article. क्रोनोलॉजी समझे? अमित शाह वाली क्रोनोलॉजी नहीं। तुम मीम नहीं समझते हो यार, तुम बच्चे हो। तो मीम समझ तुम, क्योंकि पढ़ाई ज्यादा करते हो, हैं तुम मीम नहीं समझते हो। चलो, वैसे पर तुम लोग छोटे भी तो हो यार, वो ना बहुत पुरानी है, वो कौन सी थी, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम की है, 19 के। अभी तो तुमसे, तब बताओ, ये 12वीं में थे तब, क्या तुम्हें पता होगा। चलो अब सुनो। हाँ, पुट अ हेडिंग reasonable restrictions and in bracket write clause 2 to clause 6. सिक्स है ना, वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, I am talking about any specific reason, any reasonable restriction that is mentioned in Article 19, not to be named specifically, but whether it be decency, morality, ठीक है, आपका sovereignty, friendly relations with the neighboring state, कुछ भी हो, friendly relation with the foreign state, ठीक है, कुछ भी हो आपका, but I am just telling you about a general thing. ठीक है, मान के चलो
the law is restricting your freedom of speech on any, let's say, X ground. क्यों? एक मान लो लॉ बना दिया गया और लॉ में ये है कि योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विल बी कर्टेल्ड अगर आप जरा भी क्रिटिसाइज करते हो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को. लेट्स से एक ये जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे जो है ये एक लॉ बन गया जिसमें क्या है, जिसमें चीफ मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करना जो है पनिशेबल बना दिया गया. ठीक है, क्या ये सस्टेन करेगा जुडिशियल रिव्यू? वेदर दिस विल सस्टेन जुडिशियल रिव्यू और नॉट? साक्षी नहीं, तुम्हारा नो इतना लेट क्यों आया? वेदर यू वर कंफ्यूज्ड? नो सर, आई वाज जस्ट थिंकिंग, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो हो सकता है. तुमने बस क्रिटिसाइज किया, कुछ भी बोल दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी मान लो. अच्छा, इज इन लॉ देन? हाँ, तो लॉ में है कि तुमने कुछ भी बोल दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी. अब बताओ सिमरन, कुछ अंगूठा अंगूठा दिखाओ कुछ, क्या ये सही है या गलत है? गलत है. हाउ यू गॉट टू नो अबाउट दिस, वेदर इट्स स्ट्रॉन्ग और राइट अगेंस्ट डेमोक्रेसी? नाउ टेलिंग यू, हाँ अब सुनो सुनो, बस एक सेकंड सुनो. हाँ बोलो. सही बिल्कुल नहीं है. गवर्नमेंट इज सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म ना, गवर्नमेंट मस्ट बी. हाँ, ये भी बात तुम्हारी सही है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है. रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है. ठीक है, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल टू द लॉ ऑफ द लैंड, दैट्स अगेंस्ट दैट. Now coming on to the legal aspect, every reasonable restriction या reasonable हटा भी दो तो every restriction mentioned in Article 19 clause 2 to clause 6 has to pass a particular test. This test will be decided by the court of law. Now going to this test stands on two basic pillars. The first pillar that determine whether a restriction is right or not is the test of reasonableness. समझना बात को. Is the test of reasonableness कि ये restriction reasonable है या नहीं है. समझ रहे हो बात? गेटिंग द पॉइंट? अगर रीजनेबल है तो ओके, नहीं है तो नहीं माना जाएगा. अगर ओके है भी, रीजनेबल है भी, तो हर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बेसिस पे आप जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 to 6 के अंडर जो है रेस्ट्रिक्टिव लॉ नहीं बना सकते हो until it passes the second test, and the second test is called as traceability test. What is the meaning of traceability test? बात को सुनना बड़े ध्यान से. पहला तो ये होगा कि आपको ये देखना होगा कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होनी चाहिए. ये तो समझ गए आप. रीजनेबल, नाउ यू विल से, मुझे जो आज तक डाउट्स मिले हैं वो ये कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्रिमिनल सोसाइटी. अब वो क्रिमिनल सोसाइटी है, उस क्रिमिनल सोसाइटी में मान लो 200 लोग हैं, उनके हिसाब से क्राइम करना इज राइट, दूसरों के हिसाब से रॉन्ग. हम किसकी मानेंगे? हम मानेंगे लाइक माइंडेड सोसाइटी, लाइक माइंडेड पीपल जो कि राइट माइंडेड पीपल हैं सोसाइटी के, उनकी बात को क्या सही है क्या गलत है. कौन डिसाइड करेगा राइट माइंडेड पीपल क्या सोचते हैं जो सही है या गलत है? कोर्ट विल डिसाइड. आ रही है बात समझ में? बिकॉज अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ ऑफ दिस कंट्री इज द कोर्ट ऑफ दिस लैंड.
बात आई समझ में? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, इसका मतलब बच्चों ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में A2 आपका जी है ना, ABCDEFG, हाँ, सो जी बीच में एक हटा दो तो आपके पास जो है ये आपके 6 फ्रीडम्स हैं। आपने इसमें, मेरी बात सुनो, आपने इन फ्रीडम्स के इंजॉयमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए एक लॉ बनाया। पहला तो रीजनेबल होना चाहिए, दूसरा कहीं ना कहीं उस रेस्ट्रिक्शन का जिक्र आर्टिकल 19 क्लॉज 2 टू क्लॉज 6 में होना चाहिए। That means that restriction must be traced to article 19 clause 2 clause 2 to clause 6। बात आ रही है समझ में? तुम क्लॉज 2 के बाहर जाके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए की फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। दैट मीन्स आर्टिकल, जैसे एक सेकेंड मुझे लेट मी रीड इट आउट, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, यहां तो वापस से नहीं करेंगे उसको। हाँ, तो देखो जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब वही अगर हम क्लॉज 2 पे आ जाते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 पे आ जाते हैं, सो यहां लिखा हुआ है नथिंग इन सब क्लॉज ए, समझना, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1। अब सब क्लॉज ए और क्लॉज 1 में क्या है? वही जिसका मैं बता रहा था, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये बोल रहा है नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है मैं तुम्हें वो बताता हूं। इसमें रिस्ट्रिक्शन है जैसे इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी और रिलेशन इनटू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अब समझो मेरी बात, ये जो कुछ यहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनके बाहर जाकर के आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कोई और रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते हो। समझे? गॉट द पॉइंट? नहीं तो बताओ। हाँ जी, तो सर बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं ना कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है, जो भी ये सारे क्लॉजेज है, 6 सब क्लॉजेज है, हाँ तो हाँ, जो भी वो रिस्ट्रिक्शंस है वो इन्हीं क्लॉजेज 2 to 6 में से डिराइव होनी चाहिए बेसिकली। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इट मस्ट बी ट्रेस्ड टू इसके जो भी पर्टिकुलर क्लॉज है। समझ गए? तुम बेयर ले रहे हो, जैसे देखो, दैट मीन्स यहां पर ये आपका, हटाओ हाथ एक बार, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, नहीं ये 1 नहीं, आर्टिकल 19 कहाँ है, 1 कहाँ लिखा है, 1 यहाँ, क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है। ये ए में टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ए के लिए ही एक सेकंड क्लॉज है जिसमें है क्लॉज ए की रेस्ट्रिक्शंस मेंशन। इनमें जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनसे बाहर जाकर के आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? ये बार बार ऑन एंड ऑफ क्यों हो जा रहे हो तुम सभी? नॉट ओनली वन बट सभी। श्वेता, दीपांजल, क्या हो रहा है? फोन चला रहे हो? हाँ, दीपांजल तुम पीजी में रहते हो या घर पे? सर रूम पे। रूम पे? रूम मतलब घर पे। पीजी? घर पे। नहीं घर। तो घर यार, रूम थोड़ा हुआ यार, ऐसे नहीं करो यार। सर यहाँ पे तो अभी घर पे है, बट वहाँ मतलब क्योंकि कॉलेज है तो फिर फ्लैट लेकर है ना। चलो, ये कहाँ है श्वेता?
Is she there in the call? She isn't there क्या? No, she is not there in the call. चलो, हाँ जी. ना एक हो नहीं चलेगा, दोनों होना चाहिए. Very good question. According to him, जो है इन क्लॉजेस में वो रीजनेबल तो होगा ही. इन क्लॉजेस में जो चीजें हैं वो तो रीजनेबल हैं, बट उनको डिफाइन कहीं नहीं किया गया है. What do you understand by the word security? I am saying some statement, whether that is a threat to the security of the state or not, how you know? वही तो कोर्ट ही तो बोल रहा है कि ट्रेसेबल होना चाहिए. कोर्ट यही तो बोल रहा है कि तुमने एक्स लॉ बना दिया, तुमने एक्स लॉ बना दिया, तुम्हारे हिसाब से वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को मेंटेन करने के लिए है, क्या पता ना हो. अभी हम जो है पढ़ेंगे, आपका केस लॉज पढ़ेंगे. उन केस लॉज में न्यूज़पेपर पर एक पॉलिसी बना दी कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है आपका प्रेस फ्रीडम, उस पे पॉलिसी बना दी कि पेजेस बस 10 रख सकते हो आप न्यूज़पेपर में. अब स्टेट वाज सेइंग कि दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट ट्रेसेबल टू आर्टिकल 19 क्लॉज 2, बिकॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रेस फ्रीडम को आप कर्टेल कर सकते हो. ट्रेसेबल इन द सेंस जो मीनिंग है उस क्लॉज का, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाले, वही मीनिंग से लॉ बनना चाहिए. नहीं, अब तो फिर वहां पे ये भी तुम्हारी सही बात है. इफ दे मेंशन दैट इट इज, तो यही तो मेंशन किया था कि हमारे पास समस्या है. तो यही तो बात आती है पूरे संविधान की. यार तुम लोग बड़े बढ़िया क्वेश्चन पूछते हो, मजा आ रहा है. अब तुम एक बात बताओ, नहीं अब तुम खुद एक बात सोचो, यही तो मुद्दा आता है बैलेंस करने का प्रिंसिपल्स को. तुम्हें एनवायरनमेंट को बैलेंस करना है फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ, करो. जिसका पलड़ा भारी हुआ उसको तवज्जो मिल गया. कौन बैलेंस कर रहा है? कोर्ट ने नहीं किया था, वो लॉ ने किया था. वो लॉ ने किया था. लॉ तो चलो बैलेंस कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, बट कोर्ट ने किसको माना? कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रेस के फ्रीडम को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. एकदम सही. और दूसरी बात एक और है ना कि इफ दैट विल बी अ बर्डन ऑन यू, कि आपको कम अगर करना है कंटेंट, तो उसमें रेवेन्यू जनरेशन ऑब्वियसली डाउन जाएगा आपका. अब यही तो काम है. वहां वो इतना पढ़ के गए हुए हैं, कोर्ट में बैठे हुए हैं जजेस, गाड़ियां निकाल के जाते हैं एकदम BMW. हाँ, उन क्या है, अभी छुट्टी लेके घर में जजमेंट ही तो लिख रहे हैं. तो मिश्रा जी, तुमको आज चैन नहीं है लग रहा है. क्या किया जाए तुम्हारा? क्या वर्ड है? हाँ, इतने सीधी तो बनो नहीं तुम. कैमरा ऑन ऑफ ऑन ऑफ. तो हाँ? पानी मांग रहे थे बस. अच्छा, पानी मांग रहे, तो पानी तुमको पीते हुए हम देख लेंगे तो तुम्हारा ग्लास ले लेंगे हम. नहीं, बताओ तुम, हम तुम्हारा ग्लास ले लेंगे. चलो, पानी मांग रहे थे, चलो कोई नहीं, मांग लो तुम पानी, है ना. हम भी नहीं तुमको परेशान कर रहे हैं. लिखो, राइट वन लाइन. It's not the first point, right? The state is empowered to regulate these freedoms
The state is empowered to regulate these freedoms through legislation, full stop. Regulate these freedoms through legislation, full stop. However, the state cannot act arbitrarily. However, the state cannot act arbitrarily. However, the state cannot act arbitrarily. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इट वाज एक लाइन थी ये बस, है ना. अब फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, राइट. टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, comma, any restriction imposed by the state must pass a twofold test. Must pass a twofold test. Must pass a twofold test. Right, first ऐसे ऐसे बना लो ना, ये बना लो twofold test लिख के. Make like this: reasonableness, court of law होगा, and below reasonableness, right, traceability. मिश्रा जी अपना ग्लास इधर दो. रीजनेबलनेस में लिखो, रीजनेबलनेस में लिखो द रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल, द रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल. और ट्रेसेबिलिटी में लिखो इट मस्ट बी डायरेक्टली, it must be directly linked to the specific grounds, linked to the specific grounds permitted under clauses 2 to clauses 6, permitted under clauses 2 to clauses 6 of Article 19. अब देखो, सुनो मेरी बात. नाउ द थिंग इज कि एक और बात है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में, कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ अ लॉ. Even if it is merely notified by any, let's say, department under a particular ministry, then it must be having the backing of a law. That means law can only put reasonable restrictions as mentioned in clause 2 to clause 6 of Article 19. लिख लो इस बात को. नेक्स्ट पॉइंट. There is an essential requirement for holding. There is an essential requirement for holding. Holding a restriction valid
comma, it must be imposed by law. In bracket, write legislative act. It must be imposed by law. In bracket, write legislative act. Act. ठीक है, full stop लिखो. Executive or administrative orders. Executive or administrative orders alone cannot restrict these freedoms. Alone cannot restrict these freedoms. ठीक है, क्लियर है ये बात? कोर्ट में तो देखो यही होता है ना, देर इज ऑलवेज इट इज फॉलोड क्या, legislative wisdom. Whenever you will counter a particular law, it will already in the first instance it will be assumed कि law है, legislature ने बनाया है तो reasonable होगा. Then court step in and evaluates it on the basis of these parameters. ठीक है, तो ये बात है. और burden of proof तो फिर आप ही पे है ना, कि you will have to prove this thing, otherwise the court will assume the legislative wisdom on this. ठीक है, और चलो वो डिबेट फिर बाद में देखेंगे कि भाई whether it can be enforced horizontally or not. What does that mean? There are two enforceability, vertical enforceability and horizontal enforceability. Because fundamental rights are enforced क्योंकि इसमें क्या लिखा होता है, state shall not. So whether these can be enforced against the action of state only or can also be imposed या can also be आपका taken to the court on the if it is being violated by fellow individual, fellow citizen, है ना, तो तब भी क्या आप कोर्ट जा सकते हो? If you are violating my right to freedom, then also can I go to court? If yes, then it's called as horizontal applicability. In majority of the cases, this is not right. Article 19 is only there like applicable in respect of vertical applicability, vertical enforceability. But in some judgments, the court has upheld this thing that even in case of violation of the fundamental right guaranteed by Article 19, even if that is violated by fellow person, not being like the state, then also it can be enforced if really substance is there in the matter. ठीक है, हाँ. So अभी now put a subheading in reasonable restriction, है ना, put a subheading core philosophy of reasonable restriction. Core philosophy of reasonable restriction. आज तो फ्रीडम की पहली क्लास है, अभी ज्यादा कुछ हम लिख नहीं पाए हैं अभी, अदरवाइज लिखना तो बहुत होता है. अभी एक काम करो, जस्ट टेक 2 minutes एंड रीड एक बार कि तुमने अभी तक क्या पढ़ा. ठीक है, रीड इट एंड जस्ट लेट मी नो अगर कोई कंफ्यूजन है तो. I'm just coming in a minute, okay?
हाँ तो बताइए क्या पाया, पढ़ा नहीं अभी तक? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, करो कंप्लीट करो. When it's done, just raise your hand. अक्षत, डन. यस सर. कोई डाउट है तो पूछो. नहीं सर, क्लियर है अभी तक. नहीं है. इसके पीछे की फिलॉसफी राइट, राइट द फिलॉसफी, राइट द फर्स्ट पॉइंट. देयर इज नो, ये आपको मैंने बताया है ना, बस जस्ट वी आर राइटिंग दिस, ठीक है. राइट, देयर इज नो सिंगुलर कॉमा एग्जॉस्टिव, there is no singular exhaustive definition or mathematical test or mathematical test
For reasonableness. For reasonableness. ठीक है? Clear? Instead, right? Instead, नहीं इसी में. Instead, the judiciary applies a flexible comma dynamic approach. Dynamic approach. ठीक है? Right, next point. A reasonable restriction strikes a balance between individual freedoms and social control. Next point. A restriction is unreasonable if it is arbitrary, comma excessive. Arbitrary, comma excessive. Or goes beyond what is strictly required. What is strictly required to protect the public interest. All right. अब देखो यहां पर एक बात है, कोर्ट की अप्रोच क्या है. व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द कोर्ट? कोर्ट डज नॉट ऑलवेज, like it's not that court is always very narrow in this. Court is like always adopting a pragmatic and elastic approach, but the point is what is pragmatic, what was pragmatic 50 years back is not pragmatic today. What is pragmatic today will not be pragmatic 50 years after. Maybe criticizing like the यहाँ तुम 66A IT section 66A देख लो ना. At one time it was pragmatic, but on other side it wasn't pragmatic, and soon after it was like made तो उसको nullify कर दिया गया. ठीक है? तो now the thing is, court takes several things into consideration before coming to a conclusion whether a restriction is permissible or not. Like, see, for example, saying that ADM Jabalpur case was a darkest point of history. Even when I teach ADM Jabalpur case, I also say that thing only. Because I am not standing in 1975. I am standing in 2026. That's why I say this. But at that time, court, before striking any particular law as valid or invalid, takes into consideration the socio-economic ongoings of that particular time. Even it takes into consideration the burning problems of the society of that time. And also we can say that several things, socio-economic things, are taken into consideration before reaching to a particular point whether a restriction is reasonable or not. At that time, just imagine during the time of ADM Jabalpur case, the country was burning, the emergency in the country was
imposed just over a single phone call. Don't you think Prime Minister who can impose national emergency without informing her own cabinet on just a single phone call, asking Fakhruddin Ali Ahmed to impose the emergency, don't you think if ADM Jabalpur case at that point of time could have gone reversed, this wasn't very difficult for Indira Gandhi to ask the president even to remove the judge. That thing is different कि subsequent judgments में वो reverse होता, but उस समय क्या हुआ होता ये किसको पता है? समझ रहे हो बात? So it is not core. We are studying the core philosophy of reasonable restriction. The core philosophy of reasonable restriction states this thing only कि उस समय की सिचुएशन को भी देखा जाएगा before coming to any conclusion. समझे बात? So write this, right? लिखो next point. It is a matter of dynamic interpretation. Full stop. Right? The court's approach is pragmatic and elastic. The court's approach is pragmatic and elastic. It considers the socio-economic values of the time, the socio-economic values of the time, comma, burning problems and the need of the nation, burning problems and the need of the nation, and even the specific subject matter of the legislation. क्या बताया even के बाद? कुछ भी लिख लो, even the subject matter of the legislation, specific subject matter of the legislation, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी. पेशा जी, हाँ समझदार हो तुम. चलो गॉट द पॉइंट. ठीक है. अब देखो, वन मोर थिंग इज, जैसा मैंने आपको बताया दैट व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, वी आर राइटिंग दिस इन द नेक्स्ट पॉइंट. जैसे देयर आर टू थिंग्स. ठीक है. एक तो विच इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर. Subject matter means, for example, the reasonable restriction that is mentioned in Article 19 Clause 2 is security of state. ठीक है. अब now if there is, 2 मिनट, यही बैठ जाओ. हाँ. Now subject matter, नहीं तुम्हारी छुट्टी 2 मिनट नहीं हो रही है, खुश नहीं हो. Now, if subject matter is saying एक law आया, X law, इस law में एक restriction लगाई गई, ground दिया गया security of the state. A.K. Gopalan judgment के according, court will only take into consideration the subject matter. कि वो law का subject matter क्या है, उस law में लिखा क्या है. ठीक है. But like a long year after this A.K. Gopalan judgment, अब क्या stance है? अब आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टांस में सब्जेक्ट मैटर से now it is effect test. Earlier it was subject matter test. Now it is effect test. Okay, you made a law.
this basically has a restriction and the restriction is security of the state. अभी तक ये था मेनका गांधी तक कि भाई सब्जेक्ट मैटर उसका ठीक है ना, उसमें लिखा है ना सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मान रहे हो ना सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा हो सकता है, ठीक है, दिस इज वैलिड restriction. But now we will see, we means court will see that what is the effect of it. मान गए हम तुम सही कह रहे हो, इसमें लिखा है, ये सही बात है, but we will also analyze the effect of this. समझे? We will also analyze the effect of this. इस restriction का effect, लॉ भी सही है, सब कुछ सही है, तुमने अंडर द एम्बिटी काम किया है, बट उसका ऑन ग्राउंड इफेक्ट क्या आएगा, समझे? लिखो फोटा। अभी पहली हेडिंग क्या लिखी थी इसमें, कोर फिलॉसफी, मतलब अभी ये सब हेडिंग थी ना ये. नाउ पुट वन मोर सब हेडिंग, इन दैट सब हेडिंग राइट जुडिशियल टेस्ट फॉर वैलिडिटी, राइट जुडिशियल टेस्ट फॉर वैलिडिटी, टेस्ट फॉर वैलिडिटी. ठीक है, इसमें फर्स्ट तो लिख लो वो डबल टेस्ट रिक्वायरमेंट, पहला तो जो पीछे हमने लिख लिया है, पहला पॉइंट डबल टेस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो तो वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है, और अब दूसरा पॉइंट लिखो